Hello everyone, this is Dr. Abhishek Soni, Associate Professor of Pharmaceutics from School of Pharmacy, Abhilash University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh. Today we are going to discuss biopharmaceutics and pharmacokinetics. Now the drugs, whether they obtained from the plant, animal or the mineral sources or a synthesized chemical are rarely administered in their pure chemical form. Often they are combined with a number of inert substances, as you know that these are excipients, and transformed into a dosage form that can be administered by a suitable route. Today it is very much understood that the dosage response relationship obtained after the drug administration by the different routes, for example oral or parenterals, are not the same. Variation are also observed when the same drug is administered as a different dosage form or a similar dosage form product by the different manufacturers, which in turn depend upon the physicochemical property of a drug, the excipient present in the dosage form, the method of formulation and the manner of administrations. A new and a separate discipline called as biopharmaceutics has therefore been developed to amount for all the factors that influence the therapeutic efficacy of the drug. Here this is a new methods or a separate discipline for the same. This is a biopharmaceutics. Biopharmaceutics is a study of a factor influencing the rate and the amount of a drug that reaches the systemic circulation, and the use of this information to optimize the therapeutic efficacy of the drug product. Next one is absorption. The absorption is the process, the movement of a drug from its site of administration to the systemic circulation. कितना ड्रग आपके पास साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रहा है, वो आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन है. नेक्स्ट टर्म है बायो अवेलेबिलिटी. बायो अवेलेबिलिटी द रेट एंड द एक्सटेंड. एक्सटेंड मीन द अमाउंट ऑफ अ ड्रग एब्जॉर्प्शन. कितना जो अमाउंट ऑफ ड्रग है वो आपके पास एब्जॉर्प्शन पे जा रहा है. The alteration in a drug bioavailability is reflected in the pharmacological effects, which is also known as the therapeutic effects. The other process that plan a role of therapeutic activity of a drug are distribution and eliminations. Together they are known as a drug dispositions. जो distribution है और elimination है, तो ये जो both है इनको हम बोलते हैं drug disposition. The movement of a drug between a one compartment and the others, which is the blood and the extravascular tissue, is referred to as a drug distribution. Now the process that tend to move of a drug from a body and its terminate its action is a elimination. एक्चुअली ये जो बेस्ड है आपके पास ये है एडीएमई के ऊपर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के ऊपर. ठीक है, तो आपके पास जो क्या करता है, जो ड्रग है वो बॉडी से टर्मिनेट होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन. अब जो एलिमिनेशन है, the elimination occur by the two processes. First process is a biotransformation, second one is a excretion. Biotransformation which is usually inactivate the drug. ये क्या करेगा, आपके पास जितना ड्रग आपके पास बॉडी के अंदर रहेगा जो मेटाबोलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको क्या करेगा, ये इनएक्टिवेट करेगा लिटिल बिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ द ड्रग. नेक्स्ट जो आपके पास ड्रग होगा वो होगा एक्सक्रीट. दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिट ऑफ अ ड्रग और मेटाबोलाइज फ्रॉम द बॉडी. नेक्स्ट टर्म इज अ pharmacokinetics. It is defined as the study of a time occur of a drug, ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion, and their relationship with its therapeutic and toxic effect of the drug. Or we can say that the study of what the body does to the body. ये आपके पास एक ऐसी स्टडी है, बॉडी आपके पास ड्रग के लिए क्या कर रही है. इसी के साथ साथ हम बोल सकते हैं, जैसे आपके पास फार्माकोडायनेमिक स्टडी आता है, ठीक है, इट इज द स्टडी व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी. तो जो बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है वो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी है, और आपके पास ड्रग बॉडी के लिए क्या कर रही है वो आपके पास क्या आएगा, फार्माकोडायनेमिक स्टडी. नेक्स्ट आप कैसे फार्माकोकाइनेटिक, इट इज अ काइनेटिक ऑफ एडीएमई विच इज नोन एज अ काइनेटिक ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन.
Now this is a pharmacokinetic processes. Here this is a dosage form. First is take the absorption, after that distribution through blood, और it's metabolized and excreted out. तो बॉडी जो ड्रग डोजेस फॉर्म रहेगा वो आपको ओरल रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हो, उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो रहा है, ब्लड के थ्रू। अब ये देखिए ये प्रोसेस आ गया आपके पास डिस्पोजिशन का। डिस्पोजिशन ने क्या बोला आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकंड वन आपके पास क्या है, एलिमिनेशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है आपके पास, ब्लड के थ्रू आपके पास ड्रग क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। नेक्स्ट आपके पास मेटाबॉलिज्म होगा फर्स्ट पास मैकेनिज्म के थ्रू, तो लीवर के थ्रू ड्रग जाएगा आपके पास, और आपके पास देखिए यहाँ पे लीवर के थ्रू जा रहा है, थ्रू किडनी, और एक्सक्रीट आउट हो रहा है आपके पास। ठीक है, जो कुछ ड्रग आपके पास रहेगा वो डायरेक्ट क्या है, एलिमिनेट और एक्सक्रीट हो रहा है। Now the drug administered and the therapy can be conveniential divided into four group. First क्या है, pharmaceutical phase, second one pharmacokinetic phase, third one is a pharmacodynamic phase, and fourth one is a therapeutic phase. Now the pharmaceutics phase, first it involves the physicochemical property of a drug. Next one is the design and the manufacture of an effective drug product for administration for a suitable route. By फार्मास्यूटिक्स पोर्शन में हम क्या करेंगे, उसकी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी चेक करनी है, उसका लैम्डा मैक्स कितना है, उसका अमॉर्फस नेचर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। ये सारा चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, डोजेस फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर कौन सा करना है, आपने कौन सी आप फॉर्म बना रहे हो, तो जो ईजिली आपके पास एडमिनिस्टर हो सके सुटेबल रूट से। अगली स्टडी आती है आपके पास फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक लास्ट में हमने अभी डिस्कस किया था, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है। इट कंसर्न विद द एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्शन। देखिए यहाँ से आप इसको याद भी रख सकते हैं, इसमें क्या है फार्माकोकाइनेटिक में है एडीएमई, तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है। तो ड्रग इज elected by the plasma drug concentration, time profile and the relation with the doses for the dosing frequency and the route। ये डिपेंड करेगा आपके पास डोज कितना है, डोज की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और डोजेस फॉर्म कौन सी है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं द सम ऑफ द ऑल द प्रोसेस inflicted by the body on the dose। Third one is a pharmacodynamic phase. It concerned with the biochemical and the physiological effect of a drug and its mechanism of action, and it is characterized by the concentration of a drug at the site of action। Fourth one is a therapeutic effect। Therapeutic effect क्या है, pharmacological effect है, ठीक है, वो आपके पास क्लिनिकली बेनिफिट्स के लिए है। तो आपके पास जो ड्रग आपके पास एडमिनिस्ट्रेट की है वो आपके पास थेरेप्यूटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे देगी। इन शॉर्ट बोलूँगा तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो वो ठीक हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। नाउ द स्कीम फॉर टू रिप्रेजेंट वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व द therapy. To achieve the optimal therapy with a drug product must be designed to deliver the active principle at an optimal rate and the amount depending on the patient need। देखिए स्टार्टिंग में आपके पास देखिए अलग अलग फेस थे, फार्मास्यूटिक्स फेस है, फार्माकोकाइनेटिक फेस है, अगला आपके पास फार्माकोडायनेमिक फेस है और थेरेप्यूटिक फेस है। अब यहाँ पे ड्रग एंड एक्सिपिएंट है, हमने क्या कर दिया है, फॉर्मुलेशन को क्रिएट किया है, फॉर्मुलेशन क्रिएट हो गया तो ड्रग इन डोजेस फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद आपके पास फेज चला फार्माकोकाइनेटिक फेज। फार्माकोकाइनेटिक फेज में ओरल एडमिनिस्ट्रेट के थ्रू हो रहा है तो ड्रग रिलीज एंड द डिसोल्यूशन होगा। उसके बाद क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ साइट इन द जीआईटी, तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन से ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। यहीं पे एक और केस होगा आपके पास, यहाँ से ड्रग क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा मेटाबोलाइज में और फॉर एक्सक्रीटेड। और यहीं से आपके पास क्या हो रहा है, जब ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच गया अब आपके पास क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा, आपके पास एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यूज के थ्रू होगा। और यहाँ से क्या हो रहा है, आपके पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है और आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ से एक्सक्रीशन हो रहा है। ये है आपके पास क्या हो रहा है, एलिमिनेशन फेज है। अगला नेक्स्ट फेज आ रहा है फोर्थ, थर्ड वन इज फार्माकोडायनेमिक फेज। फार्माकोडायनेमिक फेज में क्या है आपके पास, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है उसका, उसको देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है थेरेप्यूटिक
फेस, थेरेपेटिक फेस में थेरेपेटिक इफेक्ट उसका क्या है और साथ ही साथ उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसका पता लगता है। तो ये टोटली आपके पास जो चार्ट है, जो स्कीम है, ये रिप्रेजेंट करती है आपके पास पूरी प्रोसेस को। नेक्स्ट वन हमारे पास है द नॉलेज ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द बायोएबिलिटी ऑफ अ ड्रग हेल्प टू डिजाइन अ सच ऑप्टिमल फॉर्मुलेशन एंड सेव मैनी ड्रग दैट मे बी डिस्चार्ज एज यूजलेस। ये क्या करेगा आपके पास, एक हेल्प करेगा डिजाइन, जो डोजेस फॉर्म होगा, रेजिमेन होगा, उसको फॉर्म करने के लिए। उससे क्या होगा, जो ड्रग आके बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है, एलिमिनेशन में जा रही है, एक्सक्रीशन में जा रही है, उसको क्या करेगा, यूज को बचाएगा। Rational use of a drug or a therapeutic objective can only be achieved through the better understanding of a pharmacokinetics. Pharmacokinetics क्या था, body does to the drug. ADME ध्यान रखना है आपने, ADME क्या कर रहा था, ADME से आपको रिप्रेजेंट होगा कहाँ पे हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है, किसकी ADME के लिए जाएगा, ड्रग के लिए। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, what a body does to the drug विच हेल्प टू डिजाइन अ प्रॉपर डोजेस रेजिमेन। मैं आपको पहले भी बताया, ये क्या करेगा आपके पास, एक प्रॉपर डोजेस फॉर्म को डिजाइन करेगा। शुड बी टेकन फ्रॉम रूट। देखिए ये जो लिखा हुआ है, मतलब ये आपकी इजी से आपको अंडरस्टैंड हो सके, इसके लिखा है ड्रग शुड बी टेकन थ्रू विच रूट। तो हम क्या करेंगे, ओरल भी हो सकता है, पेरेंटल भी हो सकता है, रेक्टल भी हो सकता है, वेजाइनल रूट भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आपके पास हैं, उसके रूट के थ्रू कौन सा डोजेस फॉर्म आपने प्रिपेयर करना है। Experimentation is needed to arrive at the balance between the desired therapeutic and the undesired toxic effect in order to benefit an appropriate dosage regimen. Next one आपके पास है biopharmaceutics and pharmacokinetic thus have an integral role in the design and the development of a new drug and their dosage form and improve of therapeutic efficacy of existing drug. नॉर्मली ओवरऑल हम बोलेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक आपके पास क्या है, किसी डोजेस फॉर्म को हम एक ऐसे फॉर्म में डिजाइन करेंगे थ्रू अप्रोप्रिएट जो रूट रहेगा आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का, ताकि आपके पास जो ड्रग है वो यूजलेस ना हो जाए एज एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। जब आप उसको ओरल रूट से ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसका थेरेपेटिक इफेक्ट आपके पास ज़्यादा आ सके। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर एक डोजेस फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो ओवरऑल यही आपके बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। अब नेक्स्ट चैप्टर में जो रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कैसे होता है। तो ड्रग ऑफ एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।